शहर अहमदाबाद के गोमतीपुर विस्तार में जो डिमोलिशन हुआ उसमें कब्रिस्तान और दरगाहों को भी काफ़ी नुकसान किया गया था, जिसके लिए आज APCR के गुजरात चैप्टर के प्रेसिडेंट शमशाद खान पठान एडवोकेट और उनकी एडवोकेट टीम गोमतीपुर पुलिस स्टेशन आई थी। इनके साथ में कांग्रेस के म्यूनसिपल कॉरपोरेटर इकबाल शेख, कॉरपोरेटर जुल्फी खान, AIMIM के जमालपुर के कॉरपोरेटर मुश्ताक भाई खादीवाला, AIMIM के दरियापुर वार्ड प्रमुख अनीस शेख और दूसरे सभी राजकीय पार्टी के लोग आए थे। पिटिशन की नकल पर આપણે આપીએ છીએ। એ પિટિશનના પેરા નંબર 10 માં કોર્પોરેશનના HH વેદ સાહેબે એવું આશ્વાસન આપ્યું હતું કબ્રસ્તાનની કોઈ પણ જગ્યાને અમે નુકસાન નહીં પહોંચાડીએ। એમણે આખી કબ્રસ્તાનની દિવાલ તોડી દીધી છે, જે દિવાલ પડવાથી ઘણી બધી કબરોને નુકસાન થયું છે। એની સાથે જે દાદીમાનો રોજો હતો 600 વર્ષ જૂનું છે, જેને ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડે પણ સ્વીકાર્યું છે કે અહીંયા મજાર હતી અને નુકસાન થયું છે। અને જો આ કરવામાં આવ્યું હોય તો BNSL સેક્શન 301 અને આપણી IPC જૂની 297 મુજબ એ કોઈ પણ વ્યક્તિની લાગણી દુભાય છે। એટલે સાહેબ અમારા બધાની લાગણી દુબઈ છે કેમ કે કબ્રસ્તાનમાં અમારા મરહુમીન, અમારા બુઝુર્ગો, અમારા વડલાઓ આરામ ફરમાવે છે ત્યાં સાહેબ। તો એની અંગેને સાહેબ અમારા જે વાસિફભાઈ છે એ ફરિયાદી છે અને પોતાની ફરિયાદ આપવા માંગે છે અને અમારી રજૂઆત છે કે આપ FIR એમાં દર્જ કરો અને કોગ્નિઝેબલ ઓફેન્સ છે। એટલે સાહેબ અમારી રિક્વેસ્ટ છે કે આપ એમાં FIR દર્જ કરો અને આપણે PSOને કહો કે અમારી FIR લઈ લે, અમે FIR લખાઈ દઈએ અમારી। સાહેબ ડેપ્યુટી કમિશનરે અમે ત્યાંના આગેવાન કાઉન્સિલરને સ્પષ્ટ કીધું હતું કે કબ્રસ્તાનની કોઈ પણ વસ્તુને અમે અડીશું પણ નહીં, છતાંય આ બધું કરવામાં આવ્યું છે તો ફરિયાદ તમારે લેવી પડે સાહેબ, લેવા લાયક છે। જે પ્રમાણે એડવોકેટ સાહેબે કીધું તે પ્રમાણે અમારી ફરિયાદ લઈને એની પ્રોવિઝન કરો એવી અમારી લાગણી છે। તમે જે કંઈ બી અરજી કે આવેદનપત્ર લાવ્યા હોય એ હું અત્યારે મારી ઈચ્છા એવી છે કે સાહેબ આપ FIR લો। જો આપ FIR ના લેતા હોય, કેમ કે સાહેબ આ કોગ્નિઝેબલ ઓફેન્સમાં આપણે BNSSમાં પણ એ પ્રોવિઝન છે કે જ્યારે કોગ્નિઝેબલ ઓફેન્સ ડિસ્ક્લોઝ થતો હોય ત્યારે FIR મસ્ટ બી રજિસ્ટર્ડ। જો આપ નહીં લો તો આપણે BNS ના નવા કાયદામાં જોગવાઈ આપ ઇન્ક્વાયરી કરી શકો છો। હા બોલ સાહેબ બોલી લેવા દો, ચાલો। BNS ના નવા કાયદામાં આપણે કોઈ બી તમે અરજી કે આવેદનપત્ર કે જે કાંઈ બી આપો લીગલી આપણે એને 14 દિવસમાં તપાસ કરવાની હોય છે અને એ તપાસના અંતે આપણે ડિસાઇડ કરીએ છીએ કે જે કાંઈ બી નિર્ણય લઈ કે કોગ્નિઝેબલ ગુનો બનતો હશે તો એ પ્રમાણે કરશું। એટલે આપણને 14 દિવસની સત્તા મળે છે અને એ પ્રમાણે તમારું જે કાંઈ બી અરજી અમે આપશો એ પ્રમાણે લીગલી એની તપાસ થશે। ચાલો સર, અમે માનીએ છીએ કે PI સાહેબે આપણને આશ્વાસન આપ્યું છે કે 14 દિવસ પ્રાઇમરી ઇન્વેસ્ટિગેશન કે ઇન્ક્વાયરી જે પણ છે એ કરશે, એના પછી જે એમને યોગ્ય લાગશે કોન્ફિડન્સ છે, ઈમાનદારીથી આપણે એમાં તપાસ કરશો। એક જે ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ છે એની સામે તમે સાહેબ सबका फोटो सबका बीजा मुस्तक बीजा लाइट क्यों रखो ना, यार लाइट के हिसाब से तो काम हो जाएगा। लाइट को हटा दे तो लाइट बंद कर दूंगा अभी। नहीं नहीं नीचे वो आटलो तो रहते नीचे रखे तो हमारू नहीं आवे। आपका नाम और एडवोकेट शमशाद पठान, स्टेट प्रेसिडेंट APCR गुजरात। आज किस मुद्दे पे आप पुलिस स्टेशन में आ रहे हो? आज हम वासिफ भाई की कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए आए थे, FIR देने के लिए, जिसमें आज की कंप्लेन में हमने पुलिस को ये कहा है कि जो चारतोड़ा में आपने डेमोलिशन किया है, हम उसके टेक्निकल इश्यू में अभी आज नहीं जा रहे हैं, लेकिन चारतोड़ा कब्रिस्तान को लेके एक हाईकोर्ट में पिटीशन हुई थी जिसमें अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडवोकेट विर्क साहब ने हाईकोर्ट को ये एश्योर करा था कि चारतोड़ा कब्रिस्तान के किसी भी हिस्से को डिमोलिश नहीं किया जाएगा। लेकिन इस डिमोलिशन के दरमियान चारतोड़ा कब्रिस्तान की पूरी दीवार को कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने म्यूनसिपल कमिश्नर के इशारे पर डिमोलिश किया है, जिससे कई सारी कब्रों को नुकसान हुआ है। और दादी माँ का रोज़ा, जिसको गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने भी माना है कि ये 600 साल पुराना मज़ार था, जिसको भी डिमोलिश किया है। उसके अलावा कई सारी कब्रें और मज़ारों को कॉरपोरेशन ने मनमाने ढंग से अपनी सत्ता का गलत उपयोग करते हुए डिमोलिश किया है। और आज हम पुलिस को ये कहने के लिए आए थे, कंप्लेन देने के लिए आए थे, FIR दर्ज करवाने के लिए आए थे। PI राणा साहब से हम मिले, उनको हमने हमारी बातें रखी
और बताया कि बीएनएस की कलम 301 और आईपीसी की पुरानी 297 के तहत कोई भी कब्रिस्तान या शमशान या ऐसी कोई भी जगह जहां पर अंतिम विधि या दफन विधि होती है या लाशों को रखा जाता है, वैसी कोई भी जगह पर ऐसा कोई भी एक्ट या ऐसा कोई भी कार्य वो जिससे किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों, वो गुनाह बनता है और वो कॉग्निजेबल गुनाह है। हमने उनसे कहा पीआई साहब से कि जब एक बार कॉग्निजेबल गुनाह अगर डिस्क्लोज होता है तो पुलिस की ये फ़र्ज है कि वो एफआईआर दर्ज करे। उन्होंने हमको बीएनएसएस का एक और प्रोविज़न के लिए कहा है कि उनके पास ये 14 दिन के पावर हैं कि वो एक प्राइमरी इंक्वायरी करेंगे। हमने कहा कि आपको अगर आप प्राइमरी इंक्वायरी करना चाहते हैं और उसके बाद अगर आपको हमारे कंप्लेन में सत्यता पाई जाती है तो वो म्यूनसिपल कमिश्नर अहमदाबाद और जो लोग चारतोड़ा कब्रिस्तान में जो अधिकारी और उनके साथ जो उनके मिलने जुलने वाले लोग आए थे और जिन्होंने चारतोड़ा कब्रिस्तान की दीवार, दादी माँ का रोजा और दूसरे मज़ारों और कब्रों को तोड़ा है, उनके खिलाफ इंशाल्लाह एफआईआर दर्ज होगी। आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? देखिए 14 दिन हम भी मानते हैं कि बीएनएसएस में एक प्रोविज़न है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं कोई कंप्लेन के ऊपर। अगर वो इंक्वायरी करने के बाद अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की हमारी पूरी तैयारी है कि हम इस मामले में आगे इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। सर, ये तो आस्था से जुड़े हुए लोगों की पीर बाबा की लड़ाई हुई, मानवता से जुड़े हुए लोग जो मानवता संसार हुई है, रमज़ान के महीने में लोगों से बेघर किया है, बिजली पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए। देखिए ये दो अलग अलग मुद्दे हैं और डेफिनेटली हम उस चीज़ को मानते हैं कि इसमें गुजरात सरकार की खुद की पॉलिसी है। 2013 में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, जब भी कोई टाउन प्लानिंग का आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो लोगों को उचित मुआवजा या वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहिए, लेकिन कॉरपोरेशन ने यहाँ पर नहीं दिया है, मनमाने तरीके से इसको किया है। अगर चारतोड़ा के लोग इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहेंगे तो एपीसीआर और तमाम संगठन और तमाम पक्ष के नेता जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग पार्टी के कॉर्पोरेटर्स हैं, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों के साथ मिलकर इसको राजनीतिक तौर पर और कानूनी तौर पर भी इंशाल्लाह लड़ा जाएगा। मेरा नाम वासिफ हुसैन है। आज हम लोग यहाँ पर गोमती पुलिस स्टेशन में जो चारतोड़ा कब्रिस्तान की दीवार है और वहाँ की जो मज़ारों को तोड़ा गया है उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने आए थे। ये एक इलीगल ऑफेंस म्यूनसिपल कमिश्नर के द्वारा किया गया है। इसके बावजूद कि उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में ये बांयधरी दी थी कि वो कब्रिस्तान के किसी भी पार्ट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये बांयधरी देने के बाद भी उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलके ये ऑफेंस किया है, जिसकी वजह से यहाँ के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। तो मैं अपने तरफ से भी, क्योंकि उस कब्रिस्तान में आप समझ लीजिए मेरे वालिद साहब की भी कब्र मौजूद है, मेरे दादा की कब्र मौजूद है, यहाँ तक कि मेरे वहाँ पर बड़े वालिद साहब के 3 बच्चों की कब्र मौजूद है। इसके अलावा ऐसे 2-3 लोगों की कब्रें मौजूद है कि जो मेरे साथ बचपन में खेलते थे, लेकिन किसी वजह से अल्लाह ने उनको जल्दी उठा लिया और वो इस दुनिया से चले गए। ये मेरा इशू ना भी हो, उसके बावजूद वहाँ पर बरसों से वहाँ पर मुसलमानों की दफन विधि की जाती है। इस चीज़ का ध्यान म्यूनसिपल कमिश्नर को रखना चाहिए था, जिन्होंने नहीं रखा। इसलिए हमने अपील करने आया था मैं तमाम लोगों की तरफ से कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बना है, तो म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन तमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। खाई 4 रस्ते से लेकर 16 नंबर की टीपी शहरकोटा टीपी जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर ये लोगों ने कॉरपोरेशन के द्वारा रीडीपी का अमल किया। रीडीपी के अमल में हम लोगों ने तमाम काउंसिलर्स और स्थानिक लोगों के साथ में पिछले 2 महीने से हम लोग मेयर, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एस्टेट विभाग के तमाम अधिकारियों से हम मिलते थे। हमने बार बार रजूआत की कि आप जो ले रहे हो रीडीपी की इनकी ज़मीन, वो इनके खुद की मालिकी की ज़मीन है, ना कि कॉरपोरेशन की के ना सरकार की है। आप लो, लेकिन वर्तर इनको पहले दो, बाद में आप ज़मीन लीजिए। साथ साथ हमने ये स्पष्ट कहा था कि बिल्कुल बाजू में चारतोड़ा कब्रिस्तान आया हुआ है। जो चारतोड़ा कब्रिस्तान है उसमें मुस्लिम समाज की आस्था जुड़ी हुई है। हज़ारों कब्रें वहाँ पर रोड पर है। इसके सिलसिले में कुछ हमारे भाई लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट के अंदर कॉरपोरेशन के द्वारा कॉरपोरेशन के वकील ने स्पष्ट कहा कि हम कॉरपोरेशन ये चारतोड़ा कब्रिस्तान की दीवार को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमें भी ये कहा गया और हमने उसी वक्त कहा था कि फिर लीगल कार्रवाई सामने हो
तो आप तैयार रहना। तो आज इन्होंने जो कृत्य किया है उसके सामने आज APCR हमारी जो संस्था है उसके तमाम नुमाइंदे, हमारे एडवोकेट साहब के साथ में, हमारे वाकिफ भाई जो फरियादी हैं, तमाम लोग यहाँ तमाम काउंसिलरों के साथ में हाजिर हुए हैं। गई कल बजट सत्र के अंदर पण मैं और हमारे साथी कॉरपोरेटर हम दोनों ने इसकी धारदार रजूआत भी की है कि ये जो तुमने किया है गलत किया है। तो हम पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारे राणा साहब बहुत ही सूझबूझ वाले हैं, हमको विश्वास है कि 14 दिन का इन्होंने जो कहा है कि इसके अंदर नॉर्म से 14 दिन स्टडी करके फिर फरियाद लेंगे, तो हमको भरोसा है ये फरियाद अगर नहीं लेंगे तो हमारी मजबूत टीम एडवोकेट की जो है हम साथ में जिस तरह कहा गया कि हम कोर्ट में जहाँ तक जाना है हम जाएंगे, इसकी रजूआत भी करने और उसके सामने FIR करने भी। क्या आप लोग गांधीनगर उच्च अधिकारियों को मिलेंगे? हम लोग ने कल CM साहब का टाइम मांगा था, लेकिन विधानसभा चालू होने की वजह से नहीं मिल सका। फिर टाइम मांगेंगे और हमको टाइम इंशाल्लाह भरोसा है कि मिलेगा, और हम जो जवाबदार लोग हैं मिलकर हमको CM साहब को मिलकर ये रजूआत करेंगे। कमिश्नर क्या बोल रहे हैं? कमिश्नर साहब और ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार उनके आकाओं को खुश करने के लिए ये काम किया गया है। सिर्फ ये मुस्लिमों के, माइनॉरिटीज़ के, कांग्रेस माइंड के लोगों के ये वोटर्स हैं, इनको डिस्टर्ब करें तो हिंदू भाई हमारे खुश होंगे। ये नीति से जो भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है उसके मातहत ही ये काम हुआ है। सर बस्तियों में आप चक्कर लगाओगे, वहाँ हालात बुरे हैं, बस बिजली भी नहीं और पानी भी नहीं है। बस्ती में हम 4 दिन से कंटिन्यूज हैं। कल एक दिन हम कल नहीं पहुंच पाए थे बजट के हिसाब से, अभी यहाँ से हम लोग फारिग होकर वहीं जाने वाले हैं। उनके तमाम जो भी मुश्किलात है उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं।